All right. So good afternoon, everyone. In today's English class, we are going to do chapter number 11 of grammar, that is number of nouns. Vanshika, I hope you have drunk whatever you're drinking and you can come back to the class. Vanshika Bansal. Right, bete. So you have done this number of nouns so many times earlier also in your previous classes. So I'll share this. Just give me a minute and I'll share the screen. I want everybody to be attentive now. Yes. Okay, bete. So as you can see on, yes, anybody, who's this? Who wants to ask anything? Ma'am, which page number? Naman, right now, bete, you don't need to open the books. You just need to look at the screen. Don't open your books right now, bete. Look at the screen. I'll tell you when you need to open the books, right? Okay, Bhuvi, can you switch on your camera, please? Bhuvi, switch on your camera. Yes, Bhuvi, switch on your camera. Yes, and अब आपका कैमरा बेटा ऑफ नहीं होना चाहिए, okay? Right. So let us start. What is, somebody's unmuted, bete. Who's this? Bete, you disturb the class in this way. Inpreet. Right. So as you can see here on the screen, bete, we are going to start the chapter number of nouns and pronouns. Now, what do you mean by number of nouns and pronouns? Number means when you change anything from, change a number. Like numbers क्या होते हैं? Counting 1, 2, 3, 4, 5, right? So अगर आप किसी भी noun का या pronoun का number change कर रहे हैं, that means आप अगर वो 1 है, 1 से उसको ज़्यादा बना रहे हैं, that is when you are making it from singular to plural, or if you are making it from plural to singular. Number change करना. This is what we're going to learn. You have already done this in class 2 also, 3 also, 4 also. So let us see what is written on the screen. When we talk of one noun, any one noun, like one person, place, animal, or thing, that is called that is said to be one in number, and that is said to be singular. उसे हम singular कहते हैं. जब भी कोई चीज one होती है, हम उसको singular कहते हैं. And when we talk of any noun that is more than one in number, then it becomes plural. तो हम उस चीज को plural कहते हैं, right? Okay. So as you can see, one stands for singular and more than one means plural, right? Now let us see how we change from singular to plural. हम change करते कैसे हैं singular to plural? So you know that maximum जो words होते हैं उनको हम singular to plural change करते हैं by adding simply s to those words. Mostly words के साथ हम s add करते हैं to make them singular to plural, right? So if you can see here, I have, this is a finger, one finger है, right? तो मैंने इसको finger बोला. Now if I show you these are now 5 fingers. So जब मेरे fingers का number 1 से लेके 5 change हो गया, उसका number change हो गया, increase हो गया, it has become plural now, and that's why now we have added s to the word finger, right? So this is how basically we change all the nouns from singular to plural. Most of the nouns are changed by adding only s to the word. ज़्यादातर nouns जो हैं वो सिर्फ s add करने से change हो जाते हैं. So as you can see here on the screen, bee, we have a picture of a bee here. Now one bee, and when we talk about many of them, then it becomes bees. Saksham Gupta, please mute yourself. Then next picture is of a window. Window is singular, but if you have two, then it becomes windows. We just add s to it. Next word that we have is uncle. One is uncle, and if there are many of them, more than one of them, then it becomes uncles, right? Then next word is okay, and singular is called ant, and more than one will be called ant. So that means कि इन words का plural कैसे बना है? By adding only s to those words. उन words का सिर्फ हमने जब s add किया तो वो plural बन गया, right? So ये basic है. Mostly words हमारे इसी तरह से plural बनते हैं. Now the next is when we talk about the nouns. जब हम उन nouns के बारे में बात करते हैं, उन words के बारे में बात करते हैं जो the nouns that end with, कैसे end हो रहे हैं? जिनके end में s आ रहा है, single s,
और दे हैव डबल एस, उनके स्पेलिंग्स में एंड में डबल एस आता है, जैसे ग्लास, GLASS ग्लास, तो उसमें डबल एस आ रहा है, राइट? देन सेक्शन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, गुप्ता, यस। देन एक्स, द वर्ड्स दैट एंड विद एक्स, ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग एक्स से एंड हो रहे हैं, जैसे बॉक्स, फॉक्स, ये सारे वर्ड्स एक्स से एंड हो रहे हैं। देन comes the words that end with SH, जिन words के spellings SH से होते हैं फिनिश, जैसे bush, 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 तो SH से उसका word के spellings फिनिश हो रहे हैं। नेक्स्ट इज CH, कुछ ऐसे words होते हैं जिनके end में spellings पे क्या आता है, CH आता है, फॉर एग्जाम्पल bench, फॉर एग्जाम्पल church, तो इस तरह के words जो हैं जिनके end में CH आता है। Now ऐसे सारे words जिनके end में या तो सिंगल S आएगा या डबल एस आएगा या एक्स आता है, और वी हैव SH और CH इन देम, ऐसे 5 जो इस 5 तरह के जिनके स्पेलिंग्स एंड होते हैं, उनके साथ हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, वी सिंपली ऐड ES टू देम, उनके साथ हम S ऐड नहीं करते। ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स इन सारे लेटर्स से फिनिश होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, वी मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग ES टू देम। Now let us look at the pictures that we have on the screen. The first picture is of bus, so it is ending with bus के spelling किससे end हो रहे हैं, S से end हो रहे हैं। So for making the plural of bus, हम वहाँ पे S नहीं लगाएंगे, we will add ES to such words, so it would become buses, BUSES, buses. Next word that we have is box. बॉक्स वर्ड का स्पेलिंग किससे एंड हो रहे हैं, एक्स से एंड हो रहे हैं, सो इसके साथ भी हम एस नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, एंड द प्लूरल विल बी बॉक्सेस एंड द स्पेलिंग्स विल बी BOXEX, BOXES, boxes. Next word that we have is watch. Now watch word किससे एंड हो रहा है, CH से एंड हो रहा है, that means इसका प्लूरल भी हम कैसे बनाएंगे, by adding, yes, by adding ES to it, ES add करके. All right. Next is next word that we have is brush. Now brush word का end भी किससे होता है बेटा, BRUSH, SH से end हो रहा है. So again here also we will make the plural of such word by adding ES. S से नहीं करेंगे, ES लगाएंगे. Last word that we have on the screen is dress. Now dress word DRESS से end हो रहा है dress. So इसका भी प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, by adding ES to it. So that means ऐसे वर्ड जिनका एंड S, डबल S, X, SH, CH से होता है, उनका प्लूरल हम ES ऐड करके बनाते हैं. Now listen to what I'm telling you and I want your answers in the chat box. Write an example of a noun that ends with S. उसका एग्जाम्पल लिखेंगे और उसका प्लूरल भी लिखेंगे साथ में, क्विकली. Only S, single S से joined हो रहा है. I want that. A word, you will not repeat the words, those are given on the screen. A word that ends with S. Very good. Cars, no bhuvi. I'm asking जिसका singular S से end हो रहा है, जैसे बस में singular बस में S आता है end में. Listen to my instruction बेटे, ऐसा word जिसका singular में S आ रहा है, आईज में प्लूरल में एस आ रहा है बेटे. आई वांट अ वर्ड जिसका सिंगुलर एस से एंड होता है, जैसे बस सिंगुलर है और एस से एंड हो. वेरी गुड मनविंदर, वेरी गुड बेटे. गैस, गैसेस, वेरी गुड. सिया, नो बुक्स इज नॉट द आंसर व्हाट आई एम आस्किंग. कम ऑन, राइट सम अदर वर्ड. नाउ एवरीबॉडी विल कीप ऑन राइटिंग गैस ओनली. नो, नो फ्लावर्स, नो बॉयज. ये बॉयज और फ्लावर्स एस तब आया जब हमने उनके साथ ऐड किया एस. यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ऐसा वर्ड जो ऑलरेडी सिंगुलर में भी जिसके स्पेलिंग में एस आ रहे हैं, जैसे गैस में एस आ रहा है. वैसे राइट नाउ हरनूर एंड कृषांग, आई वाज आस्किंग अबाउट सिंगल एस ओनली. चलिए ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट डबल एस. वेरी गुड. एस इज अ डोंकी. यस, वेरी गुड. मास was the word. Okay, pass is the word. Very good. Right. So now, okay, now stop writing and let's now listen. Next word कौन सा आपने बताना है? Glass. Very good. Very nice. Stop writing now. Next word that you have to write is that should end with CH. The word Harshita, your answer is wrong. Please listen to what I'm asking. This happens why? Because you don't listen to the instruction. Yes, CH. The words ending with CH. Very good. Church. Watch already. Catch. Very good. Bench. Okay. Clutch. Very nice.
Very good. Church, we have already got the answer. Please don't repeat the answers. Torch, very good, bete. Touch, okay. Very good. Bunch, right. Very nice. So let us move to the next word. The next word should be the word that ends with SH. Come on, start writing with SH, bete. CH, leave CH now. We have already, very good. Bush, the first answer I've got is bush. Fresh, okay. Fresh, no. Fresh is not a noun, bete. Fresh is not a noun. We want a noun. Brush is already we have discussed. Yes, dish, very good. Brush and fish, okay, yes, fish. Wash is a verb, bete. Please think before what you are writing. Crush, yes, crush is fine. Ekam, please mute yourself. Yes, flush. Ekam. Mute yourself, bete. राइट बेटे लिखने से पहले सोच लो कि जो वर्ड लिख रहे हो वो नाउन है भी या नहीं. मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग एडजेक्टिव्स, यू आर राइटिंग वर्ब्स. Alright, now let us move to the last one. This also we have discussed. X, the word ending with X. Word ending with X. Box. Ox का लेकिन oxes नहीं होता है, so this is wrong here. I am asking for a word that should end with X और जिसका plural हम ES लगाते हैं. Fox and box. You have to, if you have any other word. Pushpinder, ox is wrong. I just told you, अभी ox यहाँ पे suitable नहीं है. Oxes नहीं लगाते हैं हम. Oxen होता है plural. So you have only two words. Anybody who has any other word in mind? Box and fox के अलावा, other than these two words? Nobody? Axe, yes, axe में A X E होते हैं spelling. Come on. Wax, okay, yes, waxes. चलो, okay, wax वैसे countable नहीं होता बेटा. Wax is not. We, you know what? When we are talking about these singular to plural, आपको ध्यान रखना है कि वो चीज क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए. जो काउंटेबल होता है उसी को तो नंबर चेंज करेंगे. जो चीज आप वे करते हो, जैसे शुगर है, उसको तो आप शुगर्स नहीं लिख सकते ना, शुगर ही लिखोगे, क्योंकि उसको आप वे कर सकते हो, उसका वेट देख सकते हो, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते. यस, टैक्स इज करेक्ट आंसर. चिकन पॉक्स इज द नेम ऑफ अ डिजीज. चिकन पॉक्सेस तो नहीं बोल सकते हैं. Right, so this was fine. Stop writing. Let us move to the next slide, please. Yes, stop writing, bete. Let us move to the next slide. Okay, now we have the nouns that end with F or FE. अब ऐसे नाउन जो F या FE से एंड होते हैं, मतलब उनके एंड में स्पेलिंग्स जब हम लिखते हैं सिंगुलर में. अभी प्लीज स्टॉप राइटिंग बेटे. Let me explain, right? Let me explain first. I'll give you time to write down the examples. I'll give you time, bete. अभी भी आप लोग सुन नहीं रहे हैं. I told you I'll give you time to write the examples. Right now you need to concentrate on what I'm telling you. So the words that end with F or FE, ऐसे words जिनका singular word F या FE से spelling खत्म होते हैं, उनको हम कैसे change करते हैं? उनको हम change करते हैं by adding VES. उसमें हम क्या करेंगे? F और FE को cut कर देंगे और उसकी जगह VES add कर देते हैं. Now let us take the example here. Look at the screen, please. First word that we have is leaf. Leaf word के spelling end हो रहे हैं. Kanika, can you stop writing? Yes, लीफ वर्ड का स्पेलिंग एंड हो रहे हैं एफ से, और जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं, when we make the plural of the word leaf, then what we do, we remove f from there and then we add ves, so it becomes leaves, leaves. Right, next word that we have on the screen is knife. Again, knife word में भी fe से end हो रहा है, so when we make plural of knife, it becomes knives, so it would be KNI. FE को remove कर दिया and it would become VES, knives. Last word that we have here is thief. Thief word again is ending with F, but when we make the plural of thief, it becomes thieves, THIE. F will be removed from there and we'll add VES, so it will become thieves. So leaf becomes leaves, knife becomes knives, thief becomes thieves. Right? So this was कि अगर F से या FE से end हो रहा है. But here also we have some exceptions. Exceptions means उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होते हैं, कुछ words ऐसे होते हैं जिन पे ये rule apply नहीं होता है. Section, stop it.
जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, सारे एफ और एफ ई वाले वर्ड्स को हम इस तरह से प्लूरल नहीं बनाते हैं. सो अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक. यू नीड टू कीप देम इन माइंड कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ VES नहीं लगता, जिनको हम सिंपली S लगा के प्लूरल बनाते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर गिवन. द वर्ड्स दैट आर गिवन आर चीफ. चीफ वर्ड जो है उसका चीफ्स नहीं होता है, इट बिकम्स, we only add S to it, so it becomes chiefs. Movie, I told you to switch on a camera. Keep your camera on. Next word that we have is dwarf. Dwarf. Now I have told you this word dwarf. Quickly write in the chat box what is the meaning of the word dwarf. Everybody, those who know, because we have discussed the same word in class 4 also. What is a dwarf? Yes. Bone. Okay. So Mala Tiwari, the child with the name Mala Tiwari, you have written Hindi in English. Ekam, good to see you. Ekam, good to see you. Finally, your camera is on. On कर लो बेटा, अब इसको ऑफ मत करना, मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के. Very nice. अब इसे ऑन ही करना है, right? रोज क्लास में. Okay, so bonum is short-heighted people. So a short-heighted person is called a dwarf. जिसकी हाइट छोटी रह जाती है due to any reason. So उसे हम dwarf बोलते हैं. So dwarf का plural dwarves नहीं होता है. बेटे, I told you the answer. अब बस stop writing in the chat box ना. Dwarf का plural dwarfs होता है. ठीक है, उसमें VES नहीं ऐड करते. Next we have grief. Grief, GRIEF, grief का मतलब होता है दुख. So grief का plural होगा griefs. ठीक है. Proof, sorry, proof. Proof देते हैं ना हम किसी चीज का, इसका proof तो हमें. So proof will be proofs, S only. Safe, safes, safe. Then hoof, hoofs. ये जो words हैं इन्हें आपको अच्छे से learn करना है, and you need to keep them in mind that these words, yes, that these words don't take VES with them. We simply add S to these words, right? Okay, now let us move further to the next thing. Now, some nouns form the plural by changing, by a change of the inside vowel. उनके अंदर जो वॉवल आ रहा है उनके स्पेलिंग पे, उनके वॉवल्स को हमने चेंज करते हैं. कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं. Now let us tell you what do I mean that by that. Look at the first word. The first word that on the screen is foot. बेटे please stop writing, जानवी. Foot. Now foot में FOOT. So यहाँ पे double O क्या है? Vowels है. ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर के वर्ड्स के स्पेलिंग के बीच में जो वॉवल्स आ रहे हैं उनको हम चेंज करते हैं. अब देखो फुट में वॉवल क्या है? F is not a vowel, double O is a vowel, T is not a vowel. तो इसमें वॉवल्स क्या है? डबल O. इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? बाय चेंजिंग द वॉवल. डबल O की जगह कौन सा वॉवल लगा देंगे? डबल E. सो फुट विल बिकम फीट, राइट? सिमिलरली टूथ. टूथ में वॉवल्स क्या आ रहे हैं? डबल O. उनके वॉवल्स चेंज किए हमने. कौन से वॉवल में चेंज कर दिया? O की जगह E. सो इट बिकम्स TEETH, teeth. मैन, मैन A वॉवल आ रहा है यहाँ पे. सो मैन का प्लूरल हो जाएगा men, यानी कि A जो वॉवल है उसको हमने कौन से वॉवल में चेंज कर दिया? E में. Now next word that we have is mouse. Now mouse word में कौन कौन से वॉवल्स हैं? Quickly write. What are the vowels in the spellings of the word mouse? Yes, write in the chat box. Mouse word के spellings पे कौन कौन से? I'm not asking you the answer. I'm asking you इसमें कौन कौन से vowels आ रहे हैं? Yes, the vowels that come in the spellings of mouse are O and U. So हमने इस O और U जो vowel है उसको हटा के एक क्या लगा देना है वहाँ पे? Sorry, एक E भी आ रहा है. So it will become mouse becomes mice. So basically इन words में हमने क्या किया? Vowels को change किया. Next is goose. Goose becomes geese. I told you goose is a kind of a duck only, right? So goose का plural होता है geese. Next, now this is also very important, and I hope you people remember this. The nouns ending with Y change to their plurals in two different ways. अब ऐसे nouns जो Y से, जिनके spelling Y से end हो रहे हैं, उनके plural को हम दो अलग-अलग तरीके से change करते हैं. Yes, I hope at least some of you remember. Now let us see case 1. जहाँ case 1 लिखा है, if the word, please listen carefully. अभी typing में nobody will pay attention towards typing. Just listen to me very carefully with your ears open and pay attention. Don't look here and there. So if the word ends with a Y, अगर हमारा जो word है उसके spelling Y से finish हो रहे हैं, and the letter before Y is a vowel, लेकिन Y से पहले जो letter आ रहा है वो क्या है? Vowel है.
यस, सो इसमें आप देखेंगे, सॉरी, यस, अब यहाँ फर्स्ट वर्ड देखो, की वर्ड किससे एंड हो रहा है? वाई से एंड हो रहा है। और वाई से पहले कौन सा, मनराज प्लीज स्टॉप बेटे, वाई से पहले कौन सा लेटर आ रहा है? प्लीज लुक एट द स्क्रीन, क्या लेटर आ रहा है? ई आ रहा है, और ई क्या होता है? वॉवल होता है। सो ऐसे वर्ड जो वाई से एंड हो रहे हैं और वाई से पहले वॉवल आ रहा है, उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? उसके साथ सिंपली एस लगा देते हैं। सो की विल बिकम कीज, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखो, टॉय, TOY, वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, और वाई से पहले वाला अल्फाबेट सारे ध्यान से, यू विल लुक एट द स्पेलिंग्स ओनली, देन यू विल देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Vedika, leave the class, please. Vedika, leave my class. Right. So the next word that we have is toy. टॉय वर्ड भी वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले वोवल आ रहा है। कौन सा वोवल आ रहा है? ओ, राइट। सो राइट, सो उससे पहले वोवल आ रहा है ओ, तो हम क्या करेंगे? वहां पे सिंपली एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रे। ट्रे वर्ड अगेन इज एंडिंग विद वाई, और वाई से पहले ए आ रहा है, ए इज अ वोवल, सो इसका भी प्लूरल हम सिंपली कैसे बनाएंगे? बाय एडिंग एस। सिमिलरली वैली में भी ई आ रहा है, ई इज अ वोवल, इसका भी प्लूरल एस ऐड करके बनाएंगे। डोंकी, ई आ रहा है, तो वी विल मेक द प्लूरल बाय एडिंग एस टू इट एंड इट विल बी डोंकीज। नाउ लुक एट केस नंबर 2। इफ द वर्ड एंड्स विद वाई, लेकिन अगर हमारा वर्ड वाई से एंड तो हो रहा है, बट द लेटर बिफोर इट इज नॉट अ वोवल, लेकिन उससे पहले आने वाला जो लेटर है वो वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर नहीं है, कोई और ही लेटर है। सो वहां पे हम क्या करते हैं? वाई को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद आई एस लगाते हैं, राइट। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, आर्मी, ARMY। अब आर्मी वर्ड वाई से एंड हो रहा है, लेकिन वाई से पहले वोवल नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, एम आ रहा है, एम इज नॉट अ वोवल। सो ऐसे केस में हम वाई को कट करेंगे और उसके साथ IES ऐड कर देंगे। सो आर्मी विल बिकम आर्मीज, राइट। चेरी, आर आ रहा है वाई से पहले, सो चेरी विल बिकम चेरीज। नेक्स्ट ड्यूटी, टी आ रहा है वाई से पहले, टी इज ऑल्सो नॉट अ वोवल, सो ड्यूटी विल बिकम ड्यूटीज। पोनी, पोनी में भी एन आ रहा है, सो पोनी विल बिकम पोनीज। कॉपी, कॉपी में पी आ रहा है, पी इज नॉट अ वोवल, सो इट विल बिकम copies, right? So this is how we change from the words ending with y. Now next is the words ending with o. अगर हमारे वर्ड जो है वो ओ से एंड हो रहा है, हरनूर बेटे, whom are you talking to? Please pay attention in the class. Yes. अगर हमारा वर्ड ओ से एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट मतलब ओ से पहले कोई वोवल नहीं आ रहा, तो मोस्टली मीन्स मोस्टली, नॉट ऑल, 99% केसेस में ऐसे वर्ड्स के साथ हम ES लगाते हैं। नाउ आई टेल यू हाउ। मैंगो, अब मैंगो वर्ड देखो, MANGO किससे एंड हो रहा है? ओ से एंड हो रहा है, राइट। अब ओ से पहले क्या आ रहा है? जी आ रहा है ना यहाँ पे, जी इज नॉट अ वोवल, जी वोवल नहीं है। सो ऐसे वर्ड्स के साथ हम क्या लगा देते हैं? ES लगाते हैं। सो मैंगो विल बिकम मैंगोज। बफलो, बफलो में ओ से पहले एल आ रहा है, तो बफलोज, ES। मस्किटो, मस्किटो में ओ से पहले टी आ रहा है, टी वोवल नहीं है, सो मस्किटोज, ES ऐड हो जाएगा, राइट। Now let us see what is written at the end. But the nouns ending with double O, जो nouns डबल ओ से एंड हो रहे हैं, अभी हमने जो एग्जांपल्स किए उसमें सिंगल ओ से एंड हो रहे थे, लेकिन अगर हमारा कोई नाउन ऐसा है जो डबल ओ से एंड हो रहा है, देन वी फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस। डबल ओ वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका प्लूरल सिर्फ एस ऐड करके बनता है, जैसे ईग्लू, बैम्बू, ठीक है, बैम्बू में बैम्बूज, BAMBOOS। सो अगर हमारे वर्ड के एंड में डबल ओ आ रहा है तो सिर्फ एस ऐड करना है हमने वहां पे, ठीक है, वहां ES ऐड नहीं करते। नाउ इसके बाद देखो, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ also form their plural by adding s only। अब अगेन आपकी बुक में कुछ वर्ड्स ऐसे भी दिए हुए हैं जो ओ से एंड हो रहे हैं, लेकिन उनके प्लूरल हम एस
एस ऐड करके नहीं बनाते, सिंपली एस ऐड करते हैं. सो ऑफ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन आल्सो. इट वुड बी पियानो, पियानोज, डायनामो, डायनामोज, फोटो, फोटोज. सो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे कैसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ से तो एंड हो रहे हैं, लेकिन हम इनके साथ ईएस नहीं लगाएंगे, हम इनके साथ क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं. बेटा ये ना आपको थोड़े से, यू नीड टू अगेन, आई एम रिपीटिंग सम ऑफ द, ये जो एक्सेप्शंस होती है जहां पे आप रूल अप्लाई नहीं करोगे, इनको आपने अपने बुक में से लर्न करना है इस तरह के वर्ड्स को. सो सच वर्ड्स आर गिवन टू यू इन योर बुक, राइट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. Now, plural of some nouns are formed without any particular rule. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिन पे कोई रूल नहीं लगाना हमने कि F है तो ऐसे होगा, उनका सिंपली पूरा का पूरा हम चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, ऑक्सीज नहीं लगा रहे, ठीक है, ऑक्सन होता है इसका प्लूरल, इस पर कोई रूल नहीं अप्लाई करना, ये हमने लर्न ही करना है. ऑक्स का ऑक्सन, ठीक है. चाइल्ड, चिल्ड्रन. और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, जैसे आई टोल्ड यू लास्ट ईयर आल्सो, शीप, शीप ही रहता है. डियर, डियर रहता है. हेयर, द हेयर दैट वी हैव हेयर, ये जो बाल है हमारे, ये बाल, हेयर जो वर्ड है, चाहे हम एक बाल के बारे में बात करें, चाहे अपने सारे बालों के बारे में बात कर रहे हैं, बट द वर्ड वुड बी हेयर ओनली. हेयर जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, राइट. फिश, आई टोल्ड यू, फिश का फिश भी हो सकता है प्लूरल, और फिश का फिशेस भी लिख सकते हैं. डज एनीबडी रिमेम्बर कि मैंने लास्ट टाइम क्या समझाया था, फिशेस कब होता है वैसे, कब हम फिशेस लिख सकते हैं और कब हम फिश लिखते हैं. अदरवाइज बोथ आर करेक्ट, बोथ विल बी करेक्ट, बट डज एनीबडी रिमेम्बर क्विकली, इफ एनीबडी रिमेम्बर्स, कि दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था लास्ट ईयर आपको. नोबडी रिमेम्बर्स? मैम यस, यस बेटे बोलिए. आई एम नॉट एबल टू हियर, हु इज दिस? Girisha, is it you bete? Yes, ma'am. Yes bete. Girisha, be loud bete. Ma'am, so type of Okay, fine. Girisha bete, I think you are right. Your answer is right, but I am not able to listen to you. Let me explain. फिश मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर एक एक्वेरियम है या एक पॉट है जिसमें एक ही तरह की फिशेज हैं, सारी गोल्डन फिश ही हैं, तो उनके प्लूरल को हम फिश बोल देते हैं. लेकिन अगर एक पॉट में अलग अलग टाइप की फिशेज हैं, जैसे कैट फिश है, उसमें गोल्डन फिश भी है, उसमें कोई और फिश भी है, तो उसे हम फिश. यस जसमीत, एक्सीलेंट बेटे, वेरी गुड, very good Jasmeet. I think Gidisha was also trying to explain the same thing. Yes bete. So otherwise अगर आपको sentence आता है, अगर आप fish को fishes नहीं भी लिखोगे, no issues, both are correct. Fish is also correct, fishes is also correct. Now let us move to the plural of compound nouns. बेटा compound nouns आपको याद है, compound nouns मैंने आपको last year भी समझाया था. Compound nouns means ऐसे words, ऐसे nouns जो दो अलग अलग nouns को मिला के हमने एक नया noun बना लिया. जैसे son in law, सन इन लॉ में एक नाउन है सन, एक वर्ड है इसमें नाउन लॉ. सो ये दो अलग अलग नाउन्स को ज्वाइन करके हमने एक नया नाउन बनाया है. इट हैज बिकम सन इन लॉ. सो ऐसे वर्ड्स का भी आपको प्लूरल करते हैं बहुत ध्यान रखना है कि आपने कौन से वाले नाउन को प्लूरल करना है. सो सन इन लॉ में सन वर्ड को आपने प्लूरल करना है. इट वुड बी सन्स इन लॉ. मेड सर्वेंट, मेड वर्ड को नहीं करना, मेड इज यूज्ड फॉर अ गर्ल, सर्वेंट्स को करना है. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि कौन से वाले दोनों में से कौन से वर्ड के साथ एस लगेगा. पासर बाय, पासर्स बाय. स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, मदर के साथ लगेगा. स्टेप सन, स्टेप सन्स, सन के साथ लगेगा. देन वॉशर मैन, अ मैन वर्ड है, मैन का प्लूरल आपको पता है मैन होता है. सो इट वुड बिकम वॉशर मैन. Right, quickly, we have very less time and we have still some topics left. Now, I also told you last year, we also discussed about how to change the number of pronouns. Pronouns कौन से words होते हैं? The words that are used in place of the noun. जो words noun के place पे use होते हैं, उन्हें हम pronouns कहते हैं. Like if I talk about myself, so मैं अपने लिए, आप लोग अपने लिए क्या word use करते हो? अपना name तो नहीं ना लेते. What word do you use for yourself? I. So I is a pronoun. What can be used for a boy? He word use हो सकता है, him word हो सकता है boy के लिए. So ये होते हैं pronouns, right? So pronouns जब हम sentence में अगर हमें pronouns दिए हो तो हमें pronouns को भी change करना है. For example, अगर लिया होगा I means मैं अकेली हूँ तो मैं अपने लिए I use करूंगी. अगर मेरे साथ कोई और person भी है, हम दो लोग बोल रहे हैं, then I'll not say I word, तब हम क्या बोलेंगे? We. So if there is any pronoun in the sentence, तो आपको pronoun को भी change करना है. I becomes we, me becomes us, my becomes our,
my means मेरा, our means हमारा, you जो वर्ड होता है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी. सो you वर्ड को हमने चेंज नहीं करना है. he she it, ये तीनों वर्ड जो हैं he she it किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर के लिए. उनका प्लूरल क्या बन जाता है? they. him and her, him means उसको, उस बॉय को, her means उस गर्ल को. और अगर मेरे को बोलना उनको, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? them. Similarly his and hers, उसकी ये चीज है. अगर किसी बॉय की होती है मैं बोलती हूँ दिस इज हिज बुक, है ना, हिज. दिस इज हर्स, ये उसकी है. सो उसका प्लूरल क्या बन जाएगा? theirs. So if you have any pronoun in the sentence जो आपको दिया हुआ है चेंज करने के लिए, प्लीज पे अटेंशन कि आपको प्रोनाउन को भी चेंज करना है. नेक्स्ट थिंग इज चेंज इन द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होते हैं. शी इज अ गुड गर्ल, अगर ये सेंटेंस को आपको चेंज करना तो शी की जगह क्या हो जाएगा? दे. अब दे प्लूरल है तो उसका इज तो नहीं यूज करेंगे ना आप, क्या यूज करेंगे? दे आर गुड गर्ल्स. सो अगर आपने उसका नंबर, किसी भी नाउन का नंबर चेंज किया है तो अकॉर्डिंगली आपने उसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना है. ठीक है. शी हैज अ डॉग, शी सिंगुलर है तो उसका हैज आया. ठीक है. लेकिन अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं शी की जगह लिखूंगी दे, और दे के साथ हैज नहीं आता, कभी भी प्लूरल के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है. तो मुझे हैज को भी चेंज करना है. हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे हैव डॉग्स. क्लियर? सो आपको हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना है. हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ. डज, शी डज हर वर्क, मैं कह रही हूँ शी डज हर वर्क. तो अब मेरे को इसे प्लूरल बनाना है. शी सिंगुलर है तो उसका डज आएगा. अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? दे, क्या आएगा जल्दी से बताओ जरा. डज की जगह क्या डज ही लिख दूं? दे डज देयर वर्क. व्हाट वुड बी द आंसर? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स विद इन. Very good, Kirisha. Very good. Ains Pushpinder has written very nice. So our answer would be they do their work. हर की जगह भी क्या हो जाएगा? Their, their, their. They do their work. Right? Okay. So आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है. Is का प्लूरल होता है are, was का प्लूरल होता है were. So अगर आप बाकी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं तो आपने प्रोनाउन का भी ध्यान रखना है वहां पे, और helping verbs को भी चेंज करना है. Now let us quickly look at the example. Please look at the screen, बेटे. He has a puppy and a cat at his home. Now, आपने सबसे पहले जब भी सेंटेंस आएगा आपने फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू अंडरलाइन द वर्ड्स दैट यू नीड टू चेंज. जिन जिन चीजों का आपको लग रहा है नंबर चेंज करना है उसको पहले अंडरलाइन कर लो ताकि आप यू डोंट फॉरगेट. सो ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, उसको हम बनाएंगे दे. ही के साथ हैज आता है क्योंकि हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, लेकिन दे के साथ तो हैज नहीं आएगा. दैट मीन्स हमें हैज को भी चेंज करके हैव बनाना है. नेक्स्ट थिंग, यहाँ सेंटेंस में अ पपी है बेटा. अ पपी मीन्स वन पपी. अ और एन, जिस वर्ड के साथ भी ए और एन आ गया उसका मतलब वो वन है. लेकिन अब हमने इसका नंबर चेंज करना है ना. सो व्हेन वी हैव टू चेंज द नंबर देन हमने वहां पे ए और एन को हटा देना है क्योंकि अब वो वन नहीं है, अब हम उन्हें ज्यादा बनाने लगे हैं. सो आवर आंसर वुड बी दे हैव पपीज एंड कैट्स एट हिज की जगह हो जाएगा देयर होम्स. सो ए और एन को जरूर आपने रिमूव करना है जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड डज हिज वर्क एट स्कूल. चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन. सो द चिल्ड्रन, डज की जगह आप चिल्ड्रन प्लूरल है तो डू आएगा. सो द चिल्ड्रन डू देयर वर्क एट स्कूल्स. द थीफ इज हाइडिंग इन द वैलीज. थीफ का प्लूरल थीव्स. सो द थीव्स इस की जगह क्या हो जाएगा? इस तो सिंगुलर के साथ यूज हो रहा था ना. सो प्लूरल हो जाएगा थीव्स. तो द थीव्स आर हाइडिंग इन द वैलीज. द वॉशरमैन वॉज कटिंग अ ट्री. द वॉशरमैन, वॉज की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि वॉशरमैन प्लूरल है तो वर आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना है. सो द आंसर वुड बी द वॉशरमैन वर कटिंग ट्रीज. ओके. Now let us look at few examples more quickly. The thief killed a deer with his knife. So the thieves killed the deer with their knife, right? So one thing, Vite, before we end the meeting, it is only, we have less than 1 minute left. If anybody has any query,